Hello students, today in this video we are going to discuss all important formulas from our textbook and we'll discuss these formulas chapter wise. So our first chapter is real numbers. We have a very basic formula in this chapter that says product of two given numbers is equal to product of their SCF and LCM. That means अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हो, ठीक है, let's say 3 and 4. So अगर आप 3 and 4 का SCF फाइंड आउट करते हो and उसका LCM फाइंड आउट करते हो and if you multiply the SCF and LCM you'll get the value equal to 3 multiplied by 4. That means SCF of any number A and B multiplied by LCM of any number A and B will be equal to the product of both the numbers. So it says product of two given number is equal to product of their SCF and LCM. It is a very basic formula for the chapter real numbers. Okay. Second chapter is polynomials. In polynomials we have a division algorithm which says dividend is equals to quotient into divisor plus remainder. बहुत बेसिक सा एक एल्गोरिथम है, ये पहले भी पढ़ा होगा आपने अर्लियर क्लासेस में. सो डिविडेंड जो होगा हमारा वो इक्वल होगा क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के. ठीक है. देन वी हैव इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. जैसे हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल या एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में. सो यू नो यू सॉल्व फॉर जीरोस और सॉल्यूशन और फॉर रूट्स. सो the sum of the zeros, that means alpha and beta, is equals to minus b upon a. Okay, and the product of the zeros, that means alpha and beta, is equals to c upon a. So that means अगर आपको जो दो सॉल्यूशंस या फिर रूट्स या फिर जीरोस जो आपने पॉलिनोमियल का इक्वेशन का निकाला है उनके जीरोस का या रूट्स का आप जब सम करते हो तो माइनस बी अपॉन ए आएगा. माइनस बी अपॉन ए, बी, ए एंड सी ये सब क्या है, ये आपकी कांस्टेंट है जो आपको आपके इक्वेशंस में प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है. और अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हो तो सी अपॉन ए आपको मिलेगा. ओके. नाउ इन द थर्ड चैप्टर दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके. We'll get a pair of two line equations. That means हमें दो लाइंस प्रोवाइड की जाएंगी. ठीक है. दो लाइंस की इक्वेशन प्रोवाइड की जाएंगी एंड विद दीज थिंग्स हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि उसका कितना सॉल्यूशंस हैं. लाइक वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, अगर उसमें वन सॉल्यूशन होगा, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला अगर हुआ तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगी एंड अगर नो सॉल्यूशंस है दैट मीन्स वो पैरेलल लाइंस होंगी. एक बार चेक करते हैं कैसे होगा. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon v2, okay, so उस केस में सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. डैट मीन्स लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. डैट मीन्स वो लाइंस इस तरीके से कोई भी दो लाइन होंगी जो किसी सिर्फ एक पॉइंट पर वो आपस में मिल रही होंगी. दिस इज आवर लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2. ओके. Now, second one, if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, in that case, the lines will be coincident lines. That means जो line L1 होगी और जो line L2 होगी वो एक दूसरे को पूरे टाइम coincident करेगी. That means एक के ऊपर एक ही चलेगी. So L1 and L2 both are on the same place. So इस केस में हमारे पास infinite solutions होंगे. ठीक है. And in the third case we have a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. इस केस में will not get any solution. That means no solutions and the lines will be parallel lines. You can see this is L1 and this is L2. So you can see जब दोनों lines parallel होंगी that means they will never intersect. That means will not get any solution in this case. So we have three cases here. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. It has one unique solution, so it is a case of intersecting lines. Then we have a1 upon a2 is equals to b1 upon bt is equals to c1 upon c2. In this case, we have infinite solutions. That means lines are coincident. And in third case, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So in that case, we have no solutions and the lines are parallel lines. Okay.
Next chapter is quadratic equation. So the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0 where a cannot be 0. That means ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता. ओके अगर वो 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. सो अगेन the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0 where a cannot be 0. Okay, so the quadratic formula or also known as Sridharacharya rule is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अभी से लेकर नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प देगा. अगेन minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a where a, b and c are the constant of your quadratic equation. Okay, इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करने को आएगा. यू कैन सी दिस b square minus 4ac is also known as discriminant. This part is discriminant. So discriminant अलग से आप फाइंड आउट करते हो, that is b square minus 4ac. कुछ क्वेश्चंस में आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने को आएगा और कुछ क्वेश्चंस में आप इसका यूज करके उसके रूट्स वगैरह फाइंड आउट करते हो. ठीक है, ओके. नेचर ऑफ रूट्स. सो डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके रूट्स का नेचर क्या है. वी हैव 3 केसेस हियर. अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन विल गेट 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. दैट मीन्स हमें 2 रियल रूट्स मिलते हैं लेकिन वो अनइक्वल होते हैं. डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल. ओके, in second case if b square minus 4ac that means our discriminant is equal to 0 then we get 2 equal roots. that means हमारे roots real होते हैं और वो equal होते हैं. so ऊपर वाले केस में unequal, नीचे वाले केस में equal roots. and in the third case it says if b square minus 4ac is smaller than 0 that means अगर ये negative है, अगर हमारा d negative आ रहा है then we get no real roots. so we have 3 cases. all the 3 cases are very important. I'll suggest you guys कि आप इसके नोट्स बना लो, या अगर आपने पहले से ही कुछ फॉर्मूलाज की सारे फॉर्मूलाज की अगर अलग से कोई नोटबुक बना रखी है सो यू कैन क्रॉस चेक ऑल द फॉर्मूलाज कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है. अदरवाइज अगर आपने नहीं बनाई है सो आई सजेस्ट यू कि आप सारे फॉर्मूलाज एक जगह नोट कर लो. ये आपको रिविजन के टाइम बहुत हेल्प देंगे एग्जाम से पहले. ओके, नाउ next chapter is AP that says arithmetic progression. so first formula is for nth term. अगर हमें कोई भी term find out करना है so we have the formula an is equals to a plus n minus 1 into d. okay, second formula and one of the important formulas from this chapter is sum of first n terms of AP. आपको एक ईपी की सीरीज दी जाएगी और कुछ स्टार्टिंग के टर्म्स या जो भी कंडीशंस दी जाएंगी, अगर उसका सम फाइंड आउट करना है देन यू हैव द फॉर्मूला एज Sn इज इक्वल्स टू n विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, कितने टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है. n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट. वी ऑल्सो हैव वन मोर फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ सीरीज. इफ यू हैव द लास्ट टर्म दैट इज n बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस l. अगेन Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. This is the basic formula for sum of the series or the sum of first n terms of the AP. And if question has provided you the last term and the first term both, so you can directly find out the sum of the first n terms by using this formula, that is Sn is equals to n by 2 a plus l. Okay, so in these formulas A stands for first term. that means जहाँ जहाँ पर आपको A दिख रहा है that means first term. so आपकी AP की सीरीज का जो भी first term होगा वो आप A की प्लेस पर रखोगे. L is the last term. okay, and D is common difference. that means जो भी आपकी AP की सीरीज का common difference है that means A2 minus A1 या A3 minus A2, इसे common difference बोलते हैं. ठीक है, तो जहाँ पर D होगा वहां पर आप क्या पुट करोगे, common difference पुट करोगे. Next we have triangles, and very important formula for this exercise is this one. It says if two triangles are similar, अगर दो triangles similar हैं that means अगर triangle ABC similar है triangle DEF के, so area of triangle ABC upon area of triangle DEF will be equal to AB upon DE का whole square
इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। जहां पर आप देख सकते हो ए बी सी की एक साइड है तो डी ई एफ की कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई, ठीक है। बी सी अगर ए बी सी की एक साइड है तो उसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड डी ई एफ में क्या होगी, ई एफ होगी। एंड ए सी अगर ए बी सी की एक साइड है तो ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड डी ई एफ में क्या होगी, डी एफ। ऑल्सो इसमें आपको कुछ कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया भी यूज करने होंगे, जैसे कि 4 क्राइटेरियाज हैं। पहला है एस, वेरी इजी, साइड साइड एंड साइड। अगर दोनों ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकंड इज साइड एंगल साइड, दैट मीन्स अगर 2 ट्राइंगल्स हैं उसमें 2 साइड्स और उनके बीच का एक एंगल इक्वल है, सो उस केस में वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स है। इन थर्ड वी हैव ASA, 2 angles and the side between them, and fourth one is RHS, that means right angle, H is the hypotenuse and S is either of the side। जैसे अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो एक राइट एंगल हो गया, यह हाइपोटेनस हो गया, और साइड कुड बी एनीथिंग, बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है। सो कॉन्ग्रुएंसी रूल के बाद वी हैव सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में पहला होता है एस, अगेन साइड। बट कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस क्या है, कॉन्ग्रुएंसी में तीनों साइड्स की अगर हम बात करें तो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। बट सिमिलैरिटी में जो साइड्स हैं उनका प्रपोर्शन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उनके इक्वल होने से फर्क नहीं पड़ता है, प्रपोर्शन इक्वल होना चाहिए। अगर प्रपोर्शन इक्वल है तो सिमिलर होंगे, और अगर एग्जैक्टली इक्वल है तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सेकेंड इज SAS, again 2 sides and angle. Third one is AAA, angle, that means अगर 2 triangles के corresponding angles equal है तो वो similar होंगे। and fourth one is AA, again अगर 2 triangle के corresponding 2 angles भी equal है तो भी वो similar होंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की हो या फिर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की हो, जो भी साइड्स और एंगल्स की बात हो रही है वो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल की बात हो रही है। दैट मीन्स जिस तरीके से एक ट्राइंगल में होगी उसी पैटर्न में सेकेंड ट्राइंगल को भी होनी चाहिए, तभी वो रूल फॉलो होगा। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इसमें यूज किया जाता है, दैट वी हैव एज अ पाइथागोरस थ्योरम। वेरी इजी एंड बेसिक, सभी को पता होगा ये कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के इक्वल। That means if we have a right angle triangle, Pythagoras theorem हमेशा right angle triangle में ही सिर्फ अप्लाई होती है। So अगर ये 90 डिग्री है, that means ये right angle triangle है, तो यहाँ पर हमारा hypotenuse होगा, this is our base and this is perpendicular। So hypotenuse का square is equal to square of perpendicular plus square of base। Okay, so this is our Pythagoras theorem।